Hello students, welcome in this online class, and again we are here to continue our studies of chapter 12. That chapter 12 we had started in my previous video. I had discussed the topic glycolysis in details. How glycolysis happens, does it require oxygen, what is the product of glycolysis, what is the location of glycolysis. These are the things. Fatapat you have to, first of all, you have to get for revision, prepared for revision, and if you are ready to recall your answers, give me the answer in your comment box. Where is the location of glycolysis? What is the other name of glycolysis? That also you have to revise. The end product of glycolysis. The end product of glycolysis. Number of ATP, number of ATP produced during glycolysis. These are the some questions related to our previous video. And before we starting the new topic, we are going to revise these things. ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? राइट फटाफट इन योर, write very fast in your comment box, and if you write then I will check. When I will check, then I will also respond to you. So already these things have been discussed. First of all, you think it and write it in the comment box. The next topic that we are going to start today, that will be fermentation. After glycolysis, the first product that we get, that is the pyruvic acid. क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है. लेकिन ये पायरुविक एसिड जो बना, किस चीज से बना था बच्चा? ग्लूकोज से बना. यस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. कितने स्टेप्स थे? हाउ मेनी स्टेप्स? रिएक्शंस कितने दिए गए थे? तो 10 स्टेप्स के रिएक्शंस थे. 10 स्टेप्स में ग्लूकोज कहाँ, किस जगह पे हो रहा है ये? तो ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में. अब जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो क्या हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, so that we can get all the amount of energy. But here this is the first step, glucose to pyruvic acid, and this step is known as glycolysis. I have written the definition of glycolysis in my previous video. You have to write the sequence of action which converts glucose into pyruvic acid is called glycolysis, with several intermediate reactions and with the help of several enzymes. We can say that process is called glycolysis, in which lysis means breakdown and glyco means glucose. So what is the product, what is the fate of pyruvic acid in the cell? pyruvic acid का क्या होगा आफ्टर, जब glycolysis हो गया और formation of pyruvic acid is completed? There are two molecules of pyruvic acid formed after the process of glycolysis. But then what will happen to the pyruvic acid? There are three options for pyruvic acid. One will fermentation. In absence of oxygen, in absence of oxygen, and formation of lactic acid. Formation of lactic acid. Lactic acid is formed. Lactic acid is also formed when oxygen supply is not sufficient. बहुत कम ऑक्सीजन हो तो भी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा. But when there is sufficient oxygen in the cell, then it will enter into the mitochondria, and then there will be complete oxidation of complete oxidation of pyruvic acid when oxygen supply is sufficient.
So you have to understand these three cases from your book also when you discuss the book, because we are reading the book. And as you know, I have told in all videos of mine that my purpose of teaching is to make this complex things very easy for the students. When you read the book, you find it so understandable, and so that you can understand it very well. And if you have any confusion, if you have any doubt, you may write in comment box and I will be here to help you. Okay, so here we are now in this passage, fermentation. Before fermentation, we have seen that pyruvic acid has been formed. So we have seen that there are three major ways, तीन मेजर वेज हैं, तीन मेजर वेज हैं। जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो तीन उसके ऑप्शंस हो जाते हैं। तो क्या होता है जब पायरुविक एसिड किस चीज के द्वारा बना है, किस प्रोसेस के द्वारा बना, तो ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला फॉर्मेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहला प्रोसेस, पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा हो रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तीन स्टेप्स पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के बाद हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सेल। Fermentation will take place under anaerobic condition, means when there will be no oxygen in many prokaryotic cells and some unicellular eukaryotic cells. And for complete oxidation, यानी कि जो क्रेब साइकिल होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज टू CO2 and H2O. However, organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration, and that require oxygen supply. अब very very clear, become very clear about the concept. Don't be read in such a way that you have to learn the topic. You have to understand the topic very well. तो पायरुविक एसिड बनने के बाद, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो तीन स्टेप हमारे पास आया है। एक आया है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट नहीं होगी तब होगा। और एक होगा ऑक्सीजन एकदम जब नहीं हो सेल में, तब वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास कंप्लीट एनर्जी नहीं बन पाएगी, कंप्लीट एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन द थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, which is also called as Krebs cycle. Krebs cycle, and that happens in the mitochondria. It will happen only when there will be oxygen present. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तभी ये कंडीशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है, ऑक्सीजन बहुत मिनिमम अमाउंट में होगा, विच इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देन पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड fermentation. So in the book, what is written in your book? तो फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, because glucose is not completely oxidized, so very less energy is liberated by this process under anaerobic conditions, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड किस चीज में कन्वर्ट हो गया, CO2 और इथेनॉल में हो गया। पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज विल हेल्प इट एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दिस रिएक्शंस। तो जो एंजाइम्स इसमें जरूरत हो रहे हैं वो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज के होंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाना, ये भी होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई वेरी लेस होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व
and these are seen, and we are going to discuss this diagram also. In animal cells also, like muscles, when you take the exercise for a long period, or when you do the jogging for a long period, then what happens? Then you consume the oxygen much and more, and then after your jogging, after your walking for a long period, or after your exercising for a long period, what happens? You feel some muscle cramps, you feel some muscle spasm. That spasm is due to the less supply of oxygen. When oxygen is required by the cell for the respiration, that oxygen is not present. मीन्स कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, जॉगिंग कर लेते हो, तो आपकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के कारण बाद में फिर क्या होता है, जब हमारा सेल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन खोज रहा है, तो उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. Then what happens? This pyruvic acid will convert into lactic acid, by which enzyme lactate dehydrogenase. और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? NADH2 होंगे, जो NAD रीऑक्सीडाइज टू NAD इन बोथ द प्रोसेस. तो NADH2 जो है NAD में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हियर नो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं कि ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है बच्चे लोग, ये समझ रहे हो तुम लोग कि ये प्रोसेस हमारा ग्लाइकोलाइसिस का है. इतना प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का शॉर्ट में दिया गया है. ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट दिखाया जा रहा है, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड. अब ये पायरुविक एसिड का देखो दो ऑप्शन निकला है. एक ऑप्शन क्या है कि इथेनॉल बन रहा है, दूसरा ऑप्शन में क्या बन रहा है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है. तो दोनों फर्मेंटेशन ही है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक इथेनॉल फर्मेंटेशन. इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज इथेनॉल. And here you can see that NADH2 is reduced. NADH2 is not reduced here. NADH2 की जो है ये utilization हो रही है, और ये changes into NAD. And here also you can see NADH2 is utilized and NAD is formed. तो ये ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? NAD में चेंज हो रहा है. तो हमारा ये देखना ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड है, इसके दो स्टेप्स आपने देख लिया. यहाँ पर एक स्टेप देख लिया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और दूसरा देख लिया आपने इथेनॉल फर्मेंटेशन. नाउ वी शुड गो थ्रू द थर्ड स्टेप्स. And when you go for third steps, that will be aerobic respiration. In aerobic respiration you will find that when there will be complete supply of oxygen in the cell, there is sufficient oxygen in the cell, only then it will enter into the mitochondria. The pyruvic acid will enter into the pyruvic acid जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ से? साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा. तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. हियर कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल हैपन. अभी हमने पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ा, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं. स्टेप वाइज होता है, कई रिएक्शंस होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होगा. और ये दो टर्म चलेगा. क्रेब साइकिल दो टर्म चलता है, तो 3 दूने 6, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज करना है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर इक्वेशन कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड. तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वन टर्न में रिलीज होता है. तो when it will move for 2 turns, then 6 CO2 will be formed. The passing on the electrons, और जो पासिंग जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो वो आपको फिर ETS में काम आएंगे, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग क्रेब साइकिल के बाद, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP विल बी आल्सो टेकिंग प्लेस. तो we shall study the first is the link reaction. ये रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कह सकते हो, बिकॉज दिस रिएक्शन creates a link between the pyruvic acid to acetyl coenzyme A, and it will how it will combine. So this is reaction may be called as link reaction. Here pyruvic acid will join with coenzyme A and NAD, and it will form acetyl coenzyme A plus CO2 plus NADH2.
तो it will understand pyruvate which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates comes into the mitochondrial matrix. अब यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो है सेवरल कोएंजाइम्स के हेल्प से क्या फॉर्म करेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करेगा. नाउ वी शुड कम ऑन द टॉपिक. नोट्स प्लीज. यस. तो वी हैव सीन पायरुविक एसिड के दो पार्ट हमने पढ़ लिए, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. Now we are going to read about pyruvic acid combines with coenzyme A and NAD plus, and which reaction is taking place? Pyruvic acid dehydrogenase, pyruvic acid dehydrogenase के द्वारा, और फॉर्मेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है, प्लस NaDH2 बन जाएंगे, NaDH2 plus CO2. Here you have seen the equation also, acetyl coenzyme A, CO2, NaDH2. तो ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को हम लोग लिंक रिएक्शन भी कह सकते हैं, और तब हम लोग एंट्री करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज लिंक रिएक्शन. Before going to the link reaction, we have to understand that Krebs cycle क्या है. What is Krebs cycle? Krebs cycle always requires oxygen. It can't happen in absence of oxygen, so it is called aerobic respiration. We can say it is called aerobic respiration. Do you understand it? If you have any problem, you can write in the comment. I will certainly respond to your queries. Aerobic respiration. And in aerobic respiration, this cycle is also known as TCA cycle. TCA cycle क्यों कहते हैं इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका दूसरा नाम है, और इसका दूसरा नाम ये भी है सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो साइट्रिक एसिड बनेगा, और साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं COOH वो 3 होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसको जो डिस्कवर किए थे हैंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और उन्हीं के नाम से ये साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है. So now we have to discuss what happens inside the cell. You understand, I have drawn the diagram in my previous cell also. Like if it is the cell and pyruvate has been formed, मीन्स कि पायरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है और पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया है. दिस सेल हैज द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, and this mitochondria you can see has 2 layers, and the inner layer is folded into finger like projections. These are called क्लिस्टी. और इसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. तो ये मैट्रिक्स इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, this is the mitochondrial matrix, and in this mitochondrial matrix Krebs cycle will be occurring. Krebs cycle occurs in the mitochondrial matrix. So this pyruvic acid will be entering now inside the mitochondria. Here what will happen that pyruvic first of all क्या है, एक लिंक रिएक्शन क्रिएट होगा, और लिंक रिएक्शन के द्वारा आप देखे होंगे अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, लिंक रिएक्शन में अभी हम आगे ऊपर पढ़ाए हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है, CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लिंक रिएक्शन. और ये जो फॉर्मेशन है एसिटाइल कोएंजाइम ए का,
ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे मिल जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, that is also known as OAA, and it is a 4 carbon compound. And after that, the first product that will be citric acid. First product क्या बनेगा? It will form citric acid, and upon this formation of this name of citric acid compound, it is called citric acid cycle also. Okay. साइट्रिक एसिड के जो आइसोमर्स होते हैं वो हैं आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड, तो आइसोसाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एंड आइसोसाइट्रिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो सक्सिनेट। ऑक्जेलो सक्सिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी केवल कंपाउंड बता रहे हैं, फिर बताएंगे कहाँ पे कौन सा साइकिल चल रहा है। ऑक्जेलो सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा keto glutarate, glutaric acid also we can say, alpha ketoglutarate, and it will convert into succinyl coenzyme A, succinyl coenzyme A into succinic acid, and succinic acid into fumaric acid. We can say fumarate also, or you can say fumaric acid also. Please learn these things and make the practice so that you will find it very easy for you. Fumaric acid converted into malic acid, and then malic acid again is regenerating the oxalo acetic acid. So this is the reaction. This is the reaction that we have seen how this is taking the turn, and this cycle will be called as Krebs cycle. अभी 11-12 के लिए सबसे पहले तो है हमें बेसिक चीज जाननी है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है और 4 कार्बन यहाँ पे है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर हमारा ये देखना है कि कहाँ पे NAD और कहाँ पर FAD का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं? तो इस जो प्रोसेस होगा यहाँ पे आपको, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंड हियर यू विल फाइंड इन अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होना है तो बीच में क्या बन जाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइमेज। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन होगा, ये प्रोसेस को हम लोग SLP भी कहते हैं, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट एक हमें ATP का फॉर्मेशन मिलेगा। जो ATP हमारे पास जो है ADP, ये GDP विल कन्वर्ट इनटू GTP, GDP, GDP will convert into GTP, and GTP will convert into ATP। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ATP का, इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शंस को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा क्या कि एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इनसाइड द Krebs cycle. Another process that we have seen that is very important, that is substrate level phosphorylation. And after that we shall see that where NADH2 is formed. When oxaloacetic acetic acid is formed, here also NAD
NAD is converted to NADH2। यहाँ पर भी एक NADH2 का फॉर्मेशन हो गया है, NADH2 में रिड्यूस हो गया है, दिस इज द रिडक्शन एंड देन दिस प्रोसेस एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज कंडेंसेशन in which citric acid will be formed. Here in citric acid and then isocitric acid and isocitric acid will be oxalosuccinate. Oxalosuccinate. You can understand these things that how citric acid is formed from that oxaloacetic acid. So you have to see how it is happening. You have to see that just a minute, I am explaining it. Oxaloacetic acid, यस, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है तो हमने देखा यहाँ पर एक कंडेंसेशन की रिएक्शन हुई है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और साइट्रेट सिंथेटेज के एंजाइम के साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, यहाँ पे जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है रिएक्शन को, वो रिएक्शन है साइट्रेट सिंथेटेज। और साइट्रेट सिंथेटेज के टाइम में जो है साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है और को एंजाइम ए इज ऑल्सो सेपरेटेड। जो कोएंजाइम ए हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से लगाया था वो कोएंजाइम ए बाहर निकल चुका है एंड साइट्रिक एसिड का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया। अब साइट्रिक एसिड की जब फॉर्मेशन हो जाती है देन व्हाट विल हैपन, देन वन CO2 विल बी लिबरेटेड। CO2 यहाँ पर लिबरेट होता है। हमें देखना है हाउ मेनी CO2 विल बी लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, because we have understood that impartial oxidation was taking place during Krebs cycle. Here complete oxidation taking place, और जब complete oxidation होगा तभी CO2 complete में ग्लूकोज जो है complete breakdown होगा, जिसमें कि 6 molecules of CO2 निकलेंगे और 6 molecules of H2O बाहर आएंगे एंड 38 ATP टोटल, यानी कि कितने एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिलेंगे और कितने एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलेंगे। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें 38 ATP आएगा। तो we have to understand that CO2 will be liberated and one NAD will be converted into NADH2। NAD will be converted to NADH2। मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में शायद बताया था कि 1 NADH2 इक्वल टू 1 NADH इक्वल टू 3 ATP होते हैं। NADH को मैंने क्या बताया था कि इट इज लाइक द FD, वेन की पैसा कुछ आपका स्टोर हो गया है तो ज्यादा एटीपी है तो स्टोर हो चुका है एटीपी, ये बॉन्ड है हाई एनर्जी बॉन्ड NADH। और इसी तरह से एक FAD होते हैं 1 FAD, फेरिडॉक्सिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके 1 FAD इक्वल टू 2 ATP होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को याद आप रखिएगा क्योंकि इससे हम लोग अपना कैलकुलेशन सही करेंगे कि जहाँ भी NADH2 का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है इसमें इट मीन्स कि 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। डायरेक्ट ATP जनरेट नहीं हो रहा है बट ATP इज generated in the form of high energy bond like NADH2 or FADH2. So you have seen here that CO2, one molecule of CO2 will be liberated, NAD and NADH2 will be liberated. Next, when isocitric acid will be formed, isocitrate will be formed, so oxalosuccinate will be formed, and after that alpha ketoglutarate acid, alpha ketoglutarate जो फॉर्मेशन है अल्फा कीटोग्लूटारेट, दिस इज द 5 कार्बन कंपाउंड। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, साइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड था, अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड हो चुका है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जहां पे हम देखेंगे कि NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH2, FAD converted into FADH2। Here again you will find succinic acid is formed and succinic acid will be then converted into 1 minute to 1 minute. Here NAD and one
NAD is converted into NADH2 and GDP is converted into GTP during the final process of substrate level phosphorylation, जिसमें कि GDP is converted into GTP and GTP equivalent to ATP है, GTP is equivalent to ATP. Now सक्सिनिक एसिड का क्या फॉर्मेशन होगा? फिर सक्सिनिक एसिड के जब फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास बनेगा फ्यूमैरिक एसिड, और फ्यूमैरिक एसिड बनने के साथ ही हम लोगों को देखना होगा कि किस तरह से फ्यूमैरिक एसिड जब बन रहा हो तो FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, क्योंकि सक्सिनिक एसिड का अगर फार्मूला आप देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है COOH CH2 CH2 COOH। और अगर हम फ्यूमैरिक एसिड में जाएंगे तो ये H जो है दोनों से एक H इधर से निकला और जो FAD के साथ कंबाइन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हो गया है। Again from the formation of malic acid, again during the formation of malic acid to oxalo acid जो रिजनरेशन होगा तो यहाँ पर हमारा NAD will be converted to NADH2। अब अगर हम बुक की बात करें, थोड़ी बुक हम देख लेते हैं, तो बुक में आपको क्या दे रहा है? TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ और वाटर के साथ। प्रोडक्शन क्या करता है? तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जा रहा है। कौन सा एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है? तो साइट्रेट सिंथेज किया। एक कोएंजाइम ए रिलीज भी हो गया। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। साइट्रेट को आइसोमेराइज कर दिया हमने आइसोसाइट्रेट से। आइसोसाइट्रेट के बाद 2 स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होता है जिससे कि फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, हमने अभी साइकिल में इसको पढ़ा दिया है आपको कि डी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, वेरी गुड। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होगा? फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइजेशन होता है जिससे कि फाइनली ये ऑक्जेलिक एसिड की तरफ आ रहा है। एंड इस तरह से जो वो साइकिल है, ये साइकिल घूमता रहेगा, जनरेट करता रहेगा। तो हाउ मेनी टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल विल टेक प्लेस? तो 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल विल टेक प्लेस फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। And during the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP will be synthesized. GTP is equivalent to ATP। और चूंकि यहाँ पर ATP का डायरेक्ट जब फॉर्मेशन होता है तो वैसे प्रोसेस को ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP is converted to GDP also with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। जैसे ADP से ATP बनना, अब आप लोग पहले पढ़े हो ADP के साथ अगर हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाते थे तो क्या बन जाता था? ATP। इन द सेम फैशन हियर यू कैन सी GDP combines with one inorganic phosphate to form one GTP। तो GTP is equal to ATP। तो GTP और ATP दोनों इक्विवेलेंट है। एंड FADH2 और 3 पॉइंट है साइकिल में जहां पे कि NAD से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 पॉइंट है जहां FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड हम लोग जा रहे थे, that time FAD is converted to FADH2। The continued oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid। Again oxalo acid का formation होना जरूरी है because this cycle will turn for 2 times। It also requires regeneration of NAD and FAD from NADH2 and FADH2। So summary equation अगर हम देख लेते हैं, how many NADH2 is produced and how many FAD is produced, how many NAD has been consumed during the process of citric acid cycle। So here you will discuss pyruvic acid। pyruvic acid आपने देखा था, pyruvic acid ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बना था और वो उसके बाद सफिशिएंट ऑक्सीजन होने पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होते हैं जिसमें 4 NAD, FAD1, 2H2O, 1 ADP का इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट किनका किनका है? तो 4 NAD लगेंगे, 1 FAD
और 1 एडीपी। तो रिलीज क्या होगा, 3 CO2, 4 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP। अब इसको हम देखेंगे कि टोटल क्रेब साइकिल में, अब बस इस तरह से जान जाएं, अभी स्टैंडर्ड 12-11 के लिए आपके लिए बेहतर है कि ग्लाइकोलाइसिस में हम टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और क्रेब साइकिल में हम 30 एटीपी। इसको बहुत बाद में हम और भी विस्तार से पढ़ने का है कि किस तरह से स्टेप वाइज ये चेंज होता है। तो टोटल 38 एटीपी होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4, तो 12 एटीपी, FADH2 एक है, तो FADH2 1 एटीपी, सॉरी 2 एटीपी, और 1 एटीपी। अगर हमने सबको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया तो 12 टू 14 1 15, 15 एटीपी है, और ये साइकिल 2 बार चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2, तो कितना होगा, 30। तो ये 30 एटीपी टोटल हम जानेंगे कि क्रेब साइकिल में फॉर्मेशन हुआ, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी में 8 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। टोटल 38 एटीपी आप अभी तक में जानेंगे। आगे हम लोग फिर नोट्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रेब साइकिल आपने पढ़ा, टोटल सब कुछ पढ़ लिया, एफएडी से कन्वर्टिंग FADH2, सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अगर इतना भी आप कंफर्म कर लेते हैं, इतना की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक भी आपकी बहुत ही क्लियर है। बुक को शायद हमने नहीं डिस्कस कर पाई हूँ। मैं बुक को भी थोड़ा बुक की साइकिल को भी आप लोग की देख लेती हूँ कि क्या है बुक के साइकिल में। बुक में भी आप देख रहे होंगे सेम चीज है, पायरुविक एसिड नोन एज पायरुवेट ऑल्सो, 3 कार्बन कंपाउंड, 1 NAD is involved and NADH2 is formed, CO2 is released, 1 CO2 यहाँ रिलीज हो गया, दूसरा CO2 यहाँ रिलीज हुआ, और तीसरा CO2 यहाँ रिलीज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। 1 टाइम CO2, दूसरा CO2, CO2 को केवल अभी हम काउंट कर रहे हैं, अभी हम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ CO2 की काउंटिंग लिख रही हूँ। तो 3 CO2 आप देख रहे हो एक साइकिल में रिलीज हुआ, और ये इस तरह से अगर 2 साइकिल चलेगा तो कितने CO2 रिलीज हो जाएंगे, 6 CO2 आ जाएंगे। यस, 6 CO2 आ जाएंगे। 38 एटीपी आपने देख लिया है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि किस तरह से 30 एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल विल बी फॉर्म्ड। सो यू हैव टू सी पायरुवेट में किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ये फॉर्मेशन हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगा। फिर साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। साइट्रिक एसिड यहाँ पे नहीं दिया गया इसको, साइट्रिक एसिड, बट इन द बुक इट हैज बीन रिटन कि साइट्रिक एसिड के आइसोमेराइज जो है, ये साइट्रिक एसिड आइसोमेराइज होता है आइसोसाइट्रेट में, बुक में मेंशन है, बट इन द डायग्राम इट इज नॉट मेंशन। यू कैन राइट इन द स्टेप्स कि साइट्रिक एसिड डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक में आप डाल सकते हो, बिकॉज इट इज अप टू द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड 11 द बुक, एंड फॉर नीट ऑल्सो यू हैव टू गो वेरी थॉरोली। तो आप देखोगे कि इसमें एक हम स्टेप जोड़ सकते थे, आइसो यहाँ पे आइसोसाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो citric acid directly converted into alpha ketoglutarate acid and alpha ketoglutarate acid to succinic acid. There are some steps which has not been mentioned here, but it has been discussed in the text. And here you can see CO2 is released, NAD is changed into NADH2, GDP changing into GTP, succinic acid to direct malic acid it is given. And I have discussed that succinic acid changes to fumaric acid and then malic acid. So succinic acid, you can see here FAD changes into FADH2, and after malic acid helps in the degeneration of oxaloacetic acid. So it is better concise cycle है, आप इसका practice कर सकते हैं। Citric acid cycle figure 12.3 is very important for you. If you discuss it, if you make the practice with the help of your book, I hope you understand it very well. And all the processes are happening in the mitochondrial matrix. Don't forget this place. Don't forget the location of the don't forget the location of the Krebs cycle. So today's class, I think it is over, and today's target was to discuss the aerobic respiration and the fermentation. So my topic is completed.
वन वाज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमने अभी कंप्लीट किया है, जो दो टाइप का हमने पढ़ा, एक लैक्टिक एसिड बना और एक इथेनॉल। और हमने फिर पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने क्रेब्स साइकिल, समराइज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन को ही हमने क्रेब्स साइकिल कहा, बता दिया है आपको। क्रेब्स साइकिल का नाम क्या क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, टीसीए साइकिल, और you can say Hans Krabs was the scientist who discovered the cycle, so on the name of the scientist it has been known as Krebs cycle. Okay, so a big thanks to all of you, to all the students, whoever has liked my video and whoever has subscribed my video. Thank you, thank you, thank you very much. Okay, but make the practice. Practice makes a man perfect. So always practice. ठीक है, आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, and when you will practice, so read the book. These are the important procedures to have a clear concept, must have a clear concept of Krebs cycle. From today's class, what did you learn? Write in the comment section. Be interactive with me and you will find it very easy to understand the topic physiology. Okay, thank you very much.